तो लेट्स स्टार्ट। मैं चैट को डिसेबल कर दे रहा हूं क्योंकि अगर चैट होगा तो तुम लोग पढ़ाई में ध्यान नहीं दोगे। सो आई एम डिसेबलिंग द चैट। ओके, तो पहले मेरे को बताओ व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन। यहाँ पे चैप्टर का नाम तुम्हारा है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, तो डाइजेशन का सिंपली मीनिंग तुम्हारा क्या होता है, मतलब फूड का डाइजेशन होना। फॉर दिस वी हैव ए स्पेशल आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक, डाइजेशन मीन्स it is the process by which complex food substances are broken down into simple and absorbable forms. Okay, the complex food substances are broken down into simple and absorbable form. Simple and absorbable. For example, मैं तुमको समझा रहा हूं यहाँ पे, हम जो भी फूड हम खाते हैं, वट एवर फूड वी आर टेकिंग, जो भी हम फूड हम खाते हैं, फूड उनमें सब क्या तुम्हारा होता है, दे हैव द कार्बोहाइड्रेट्स। उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस। फॉर एग्जाम्पल, तुम यू आर टेकिंग राइस, यू आर टेकिंग चपाती, they have the carbohydrates. Basically it contains starch. Okay, so when they are digested in our system, ultimately from this you are getting glucose. Which is the main source of energy. Okay, so carbohydrate is a complex form of the food. It is broken down into glucose, and your body can absorb glucose. Your body cannot absorb the starch. So they are broken down into simple and absorbable form. Okay. Second thing is the protein. Okay, you are taking chicken, you are taking egg. Okay, protein they help in the muscle building. So after digestion, from protein you are getting amino acids. Your body can absorb amino acids. Understood? Okay. Dr. Vishnu, good afternoon. Protein. So like that, you are taking oil, you are taking ghee. So they are rich in the fat. So ultimately, when the fat is digested in your body, what you will get? You will get fatty acid and glycerol. You will get fatty acids plus glycerol. Okay. Similarly, in your food you also have nucleic acids. You also have DNA and RNA. Okay. Ultimately, what you will get? So after the digestion of DNA and RNA, what you will get? You will get a pentose sugar. You will get pentose sugar. Okay. You will get nitrogenous bases plus phosphate. You see? So these are the complex form of the food. Whatever food you are eating, they have these components. We have the carbohydrates, we have the proteins, we have the fats, we have the nucleic acids. So from carbohydrates, ultimately you are getting glucose. From protein, you are getting amino acids. From fat, you are getting fatty acids and glycerol. From DNA and RNA, you are getting pentose sugar, nitrogenous bases like adenine, guanine, cytosine, thymine, uracil, and also you are getting phosphate. So these are the simple form of the food. Your body can absorb them. So this process is called digestion. Okay. So मैं तुमको वही बोल रहा था. Okay. So क्या मतलब तुम्हारा क्या हुआ? Conversion of complex food substances into simple and absorbable forms. ये उसका definition है तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में. Okay. It is carried out by mechanical and biochemical methods
मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड, दैट मींस जो फूड का डाइजेशन होता है दैट कंसिस्ट ऑफ योर मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल और केमिकल मेथड भी हम इसको बोल सकते हैं. यू कैन ऑल्सो टेल इट एज द केमिकल मेथड. ओके, एक ही चीज है. सो हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल मेथड. मैकेनिकल मेथड तुम्हारा मतलब डाइजेशन में जो प्रोसेस है इट इन्वॉल्व्स मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स. मैकेनिकल मींस द च्यूइंग ऑफ फूड पार्टिकल्स, द swallowing ऑफ फूड पार्टिकल्स, द पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट हो रहा है ड्यू टू द वेव लाइक मूवमेंट ऑफ द मसल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ऑल आर द मैकेनिकल प्रोसेस. च्यूइंग, swallowing, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ओके. चर्निंग मूवमेंट ऑफ द स्टोमक में तुम्हारा एक चर्निंग मूवमेंट होता है, पढ़ेंगे हम. एंड ऑल्सो बायोकेमिकल मेथड्स, मतलब ultimately after the mechanical method enzymes are involved to digest the food substances. Okay, biochemical means the digestion of food by the chemicals means enzymes. Understood? तो ये तुम्हारा हो गया बेसिक, मतलब what is digestion. Okay, and for digestion of the food substances we have a well developed system. We have a well developed system, that is the human digestive system. तुम बता सकते हो मेरे को एलिमेंट्री कैनाल में कितने टाइप के होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम? व्हाट आर द टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन एनिमल किंगडम? एनीवन रिप्लाई. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? क्या क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम जो तुम्हारे होते हैं बेसिकली दे मे बी टू टाइप्स. अगर हम देखेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इफ यू सी द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, if you see the digestive tract, okay, बेसिकली ये तुम्हारा टू टाइप्स होता है. अगर हम देखेंगे एनिमल किंगडम में, एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, अनदर इज द complete digestive tract. Incomplete and complete. What do you mean by incomplete? For example, एक एनिमल में तुमको डिस्क्राइब कर, सपोज वी टेक द केस ऑफ प्लैटीहेलमिंथस, फ्लैटवर्म्स. उनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है दैट इज इनकम्प्लीट इन नेचर. अगर एक फ्लैटवर्म हम लेंगे, इफ यू टेक वन फ्लैटवर्म, ओके, इफ यू टेक वन फ्लैटवर्म, सो देयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज लाइक दिस. मतलब they have only one opening, which act as both and anus. other end जो उनका है तुम्हारा in case of flatworms you will find platyhelminthes, you will find incomplete digestive tract. Understood? Complete मतलब तुम्हारा क्या होता है? The well developed tract, वहां पे तुम्हारा एक एंड में उसका माउथ होगा और एक एंड में उसका तुम्हारा क्या होगा? एनस होगा. कंप्लीट. At one end we have the mouth, okay, and the other end we have anus. We have both mouth and anus. The most we can say that from roundworm onwards, from roundworms onwards, chordates, okay, you remember from roundworm onwards we have the complete digestive tract. Your Aschelminthes, your Annelida, Arthropoda, Mollusca, Hemichorda, all chordates, they have the complete digestive tract. I mean, they have the mouth and anus. Understood? So digestive tract may be complete, incomplete. Okay. So human being का जो digestive tract है ये complete in nature. मतलब we have a mouth for the entry of food and we have a anus for the removal of the digestive waste or fecal material. Okay. अगर हम देखेंगे यहाँ पे, if you see here, okay,
द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हम उसको टू पार्ट्स में डिवाइड हम कर रहे हैं, वी आर डिवाइडिंग इन टू पार्ट्स। वन इज योर एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम दैट इज आल्सो कॉल्ड योर जीआई ट्रैक्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड जीआई ट्रैक्ट और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। Another is the digestive glands, मतलब the glands which are associated with the alimentary canal. Okay? तो alimentary canal और your GI tract, gastrointestinal tract में ये सब पार्ट सब है। It starts from the mouth, then pharynx, then esophagus, then stomach, then we have the small intestine, then we have the large intestine, and ultimately the large intestine will lead into the anus. So it starts with the mouth and with the anus. Okay, so it is a tube like structure. तो यहाँ पे फूड एंटर करता है, फूड का मूवमेंट होता है लाइक ड्यू टू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। बट देयर आर सम ग्लैंड्स, यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स भी है, दीज आर द एसोसिएटेड ग्लैंड्स, दे हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड मटेरियल्स। क्या क्या तुम्हारा है, देखो बेसिकली अगर हम बोलेंगे ग्लैंड्स, इन जनरल ग्लैंड्स अगर हम बोलेंगे तो मेनली इसमें तुम्हारा सेलिवरी ग्लैंड्स आएगा, लीवर आएगा, पैनक्रियाज, दीज आर द वेल डेवलप्ड ग्लैंड्स, लीवर देन पैनक्रियाज एंड सेलिवरी ग्लैंड्स। ठीक, लेकिन गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल जो ग्लैंड होता है दे आर प्रेजेंट इनसाइड द गैस्ट्रिक म्यूकोजा, मतलब गैस्ट्रिक का जो स्टोमक का जो इनरमोस्ट लाइनिंग होता है म्यूकोजा, दैट म्यूकोजा विल फॉर्म द गैस्ट्रिक ग्लैंड। सिमिलरली द इनरमोस्ट लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, द म्यूकोजा, so that will form the intestinal gland. So these two are present inside the respective organ and these are formed by the mucosa layer. These are formed by mucosa layer. These are formed by the mucosa layer. Understood? So these are the parts of the alimentary canal. These are the glands. तो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम माउथ। तो फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। देखो डायग्राम तुमको बनाऊं यहाँ पे, इसको अगर लेबलिंग हम करेंगे तो समटाइम्स तुम्हारा क्या होता है कि लेबलिंग, ठीक, लेबलिंग में क्वेश्चन तुम्हारा आ जाता है। अगर लेबलिंग यहाँ पे हम करेंगे तो ये वाला पार्ट इसका क्या होगा, माउथ, ये वाला पार्ट। एक मिनट, सो ये उसका हो जाएगा माउथ, ये आपका हो जाएगा माउथ। ओके, देन द माउथ ये हो गया तुम्हारा ओपनिंग, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। पढ़ेंगे यहाँ पे बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, ठीक, यहाँ बहुत सारे यहाँ पे ग्लैंड्स विल डिस्कस। ओके, ये जो ओरल कैविटी तुम्हारा होता है, ठीक, यहाँ पे कॉमन पैसेज है, ये वाला एरिया, इसको हम बोलेंगे फेरिंग्स, फेरिंग्स, ठीक। मतलब यहाँ पे जो नाजल चैम्बर का पार्ट यहाँ पे आता है, ये आपका नाजल चैम्बर का पार्ट आता है, ये ओरल कैविटी, ये जो कॉमन स्पेस है इसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। फ्रॉम द फेरिंग्स व्हाट हैपन, दो ट्यूब निकलते हैं, एक फ्रंट में एक ट्यूब तुम्हारा निकलता है, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, इसको हम बोलेंगे ट्रैकिया। फ्रंट में ट्रैकिया के जस्ट पीछे तुम्हारा होगा क्या, द इसोफेगस। ओके, मतलब द फेरिंग्स, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, ठीक। तुम्हारा यहां से एयर आएगा यहाँ पे और यहां से माउथ से तुम्हारा फूड आता है, तो फेरिंग्स में वो मिलते हैं तुम्हारा। सो फेरिंग्स से तुम्हारा दो ट्यूब निकलते हैं, इसका फ्रंट में आता है तुम्हारा ट्रैकिया, ठीक, पीछे आता है इसोफेगस। अल्टीमेटली इसोफेगस एंटर करेगा तुम्हारे कहां पे, स्टोमक में, ये तुम्हारा एंटर करेगा स्टोमक में, ठीक। ओके,
तो स्टोमक से तुम्हारा क्या होता है, देयर इज स्टार्टिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पहला जो एक सी शेप तुम्हारा है, ये वाला पार्ट है डियोडेनम। This is the first part of small intestine. Then we have the jejunum. Jejunum स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया। ठीक, जेजुनम। ओके, देन जो लास्ट वाला पार्ट है वो हाईली कॉइल्ड है। ये वाला पार्ट हमारा हाईली कॉइल्ड है। ये तुम्हारा हो गया इलियम। ये हो गया तुम्हारा इलियम। सो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम आर द 3 पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब इलियम उसके बाद तुम्हारा आएगा, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। इसको बोलते हैं सिकम। इसको हम बोलते हैं सिकम। ये वाला पार्ट तुम्हारा कोलोन होता है। इसको हम बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन, ये ऊपर की तरफ उठता है, असेंडिंग कोलोन। ठीक, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलोन। इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग कोलोन, ये वाला पार्ट। और एक पार्ट तुम्हारा होता है, इट इज कॉल्ड सिग्मोइड और पेल्विक कोलोन। सिग्मोइड और पेल्विक कोलोन इसको हम बोलेंगे। देन ये वाला जो पार्ट हो गया, ये हो गया रेक्टम। ओके, ये वाला पार्ट हो गया एनस। तो ये ओवरऑल तुम्हारा पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल तुम्हारा यहाँ पे है। सम ग्लैंड्स आर आल्सो देयर। देखो यहाँ पे, तो हियर वी हैव द लिवर। ये हमारा लिवर हो गया, लिवर। ओके, यहाँ पे हमारा गल ब्लैडर है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा। वेयर बाइल यहाँ पे स्टोर होता है, गल ब्लैडर। ओके, ये हमारा हो गया पानक्रियाज। ये हो गया पानक्रियाज। ये हो गया आपका पानक्रियाज। और यहाँ पे माउथ एरियाज में आपका सम, इन द माउथ एरिया यू ऑल्सो फाइंड सम सैलिवरी ग्लैंड्स इन द बक्कल कैविटी एरिया में। ठीक, सैलिवरी ग्लैंड्स भी यहाँ पे हैं, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक, सो ये है तुम्हारा दिया था पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो सम टाइम तुम्हारा देखो एक इजी है तुम्हारा, लेकिन मेनी टाइम्स यू मे फाइंड क्वेश्चन की लेवलिंग के बेस में ले। तो दिया था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। समझ में आ गया? तुम्हारा माउथ, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पैनक्रियाज, सैलिवरी ग्लैंड्स। और तुम्हारा जो हो गया इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द इंटेस्टाइन। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इनसाइड द स्टोमक। तो एक ओवरऑल आइडिया के लिए तुम्हारा ये हो गया। देन थोड़ा उसके बाद हम डिटेल्स में जाएंगे, वन बाय वन हम जाएंगे। ओके, ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं माउथ से। हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। ओके, तो माउथ तो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है। ओके, अगर हम माउथ को हम देखेंगे, माउथ का जो फ्रंट वाला तुम्हारा पार्ट होता है, एक ओपनिंग जो होता है माउथ का ओपनिंग, एक तुम्हारा ये वाला जो ओपनिंग है माउथ का, अगर हम सामने से देखेंगे, ये आपका माउथ का ओपनिंग है। इट इज बाउंडेड बाय 2 लिप्स। यू हैव द ओपनिंग ऑफ द माउथ, फ्रंट। इस एरिया को हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। इट इज ए ओपनिंग, इट इज बाउंडेड बाय द 2 लिप्स। ठीक, इसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। इट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। कौन सा तुम देख पा रहे हो? द स्लिट लाइक ओपनिंग, मतलब तुम्हारा टिप के फ्रंट में, ठीक, टिप के जस्ट फ्रंट में एक ट्रांसवर्स ओपनिंग है, स्लिट लाइक ओपनिंग है, बाउंडेड बाय द 2 लिप्स, अपर एंड लोअर लिप्स। सो दैट स्पेस इज, जहां पे हम क्या करते हैं, जब तुम वहां पे ब्रश
तुम्हारा ब्रश तुम यहाँ पे रगड़ते हो, दैट स्पेस इज कॉल्ड योर वेस्टिबुल। मतलब ये तुम्हारा माउथ का एंटीरियर मोस्ट पार्ट है, आउटर पार्ट हम उसको बोल सकते हैं वेस्टिबुल। इट इज ए स्लिट लाइक स्पेस। ओके, स्लिट लाइक स्पेस है। लेकिन उसके बाद पीछे वाला पार्ट, द बैक पार्ट इज कॉल्ड ओरल कैविटी और बकल कैविटी। उसका जो पीछे वाला पार्ट तुम्हारा है, दैट इज कॉल्ड ओरल कैविटी और बकल कैविटी। ठीक, ये तुम्हारा माउथ का इनर वाला पार्ट है, इनर वाला पार्ट। आउटर पार्ट हो गया वेस्टिबुल, इनर वाला पार्ट तुम्हारा हो गया ओरल कैविटी और बकल कैविटी, इनर पोर्शन। ओके, in buccal cavity we have the many important structures are there. In buccal cavity we have many important structures. तो समझ में आया, ये हो गया वेस्टिबुल, स्लिट लाइक स्पेस, ओरल और बकल कैविटी, इनर पोर्शन। तो बकल कैविटी में सम इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर्स आर देयर। एक होता है पैलेट। बकल कैविटी का रूप को हम बोलते हैं पैलेट। उसके फ्लोर में टंग है, देन वी हैव द टीथ। तो इनसाइड द बकल कैविटी वी हैव द पैलेट, वी हैव द टंग, ओके, एंड वी हैव द टीथ। ये इसके बारे में पढ़ेंगे, इनसे तो क्वेश्चन आता है। देखो तुमको डायग्राम तुमको मैं दिखा रहा हूं। ओके, एक डायग्राम मैंने यहां पे बनाया है टू शो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बकल कैविटी। एक डायग्राम तुमको मैंने यहां बताया है टू शो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बकल कैविटी। ओके, मतलब ये माउथ को ओपन किया गया है, मतलब यू आर ओपनिंग द माउथ, यू आर ओपनिंग ऑफ द माउथ विद लिप्स वाइड अपार्ट। सपोज ये तुम्हारा अपर लिप हो गया, ये जो वाला पार्ट तुम्हारा है ये अपर लिप है, ये वाला तुम्हारा लोअर लिप। ठीक, मतलब ये वाला एरिया हमारा अपर लिप हो गया, ये हमारा लोअर लिप हो गया। मतलब ये तुम्हारा माउथ अब ओपन हो गया है, मतलब ये जो तुम्हारा है अभी ये माउथ तुम्हारा माउथ ओपन हो गया है। ओके, जब माउथ ओपन हो जाए तुम देख सकते हो मेनी स्ट्रक्चर्स आर देयर। ये तुम्हारा हो गया बकल कैविटी, ओरल कैविटी। ओके, तो उसका जो रूफ होता है, रूफ में हमारे पास क्या है, पैलेट है। तो उसका जो रूफ जो होता है पैलेट होता है, उसका जो एंटीरियर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड हार्ड पैलेट। एंटीरियर पार्ट को हम हार्ड पैलेट बोलते हैं। तुम टच भी कर सकते हो, इफ यू टच विद द टिप ऑफ द टंग इन द हार्ड पैलेट तो तुम बहुत हार्ड लगेगा। ठीक, दैट इज कॉल्ड हार्ड पैलेट। मतलब ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं हम हार्ड पैलेट बोलते हैं, हार्ड पैलेट। ये हो गया आपका हार्ड पैलेट एरिया। ओके, तो हार्ड पैलेट में तुम्हारा क्या होता है, वी हैव द ट्रांसवर्स रीजेस। रीजेस आर देयर, मतलब उसका सरफेस जो तुम्हारा है, रीजेस, सम आउटग्रोथ्स आर देयर, उनको हम बोलते हैं पालाटाइन रुगे बोलते हैं। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, ट्रांसवर्स रीजेस होते हैं, दोज आर कॉल्ड पालाटाइन रुगे। ओके, लेकिन उसका जो पीछे वाला पार्ट हो गया वो बहुत सॉफ्ट होता है, दैट इज वेरी सॉफ्ट इन नेचर। जो पीछे वाला पार्ट बहुत सॉफ्ट होता है, तो टंग से तुम टच भी कर सकते हो। पैलेट का जो सामने वाला पार्ट होता है बहुत हार्ड होता है, हार्ड पैलेट। पीछे वाला पार्ट तुम्हारा बहुत सॉफ्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट। ओके, जो सॉफ्ट पैलेट तुम्हारा होता है वहां पे एक वेरी स्मॉल हैंगिंग पोर्शन होता है, हैंगिंग पोर्शन, उसको हम यूवुला बोलते हैं। मतलब at the posterior most part of the soft palate there is a hanging structure, a lip or a flap like hanging structure, उसको हम बोलते हैं यूवुला बोलते हैं, यूवुला। तो यहाँ पे तुम दो चीजें तुम यहाँ पे याद रखना, एक इंपोर्टेंट पॉइंट्स मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। ओके, जो हमारा होता है हार्ड पैलेट, इन हार्ड पैलेट वी हैव व्हाट, ट्रांसवर्स रीजेस, इनको हम बोलते हैं पालाटाइन। रुगे। ठीक, और सॉफ्ट पैलेट में तुम्हारा क्या होता है, यूवुला होता है। इट इज ऑल्सो, इसका और एक भी नाम तुम्हारा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड भेलम पालाटी। ओके, भेलम पालाटी। तो इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये है
व्हेन यू आर swallowing द फूड, व्हेन यू आर ड्रिंकिंग द वाटर, ये तुम्हारा क्या करता है, इट क्लोजेस योर इंटरनल लेयर्स। देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है, वी हैव द यहाँ इंटरनल लेयर है, यहाँ पे क्या है हमारा, वी हैव द इंटरनल लेयर। यहाँ पे देखो ये जो फ्रंट में है ये तुम्हारा एक्सटर्नल लेयर है, तुम एयर ले रहे हो, ओके। जब एयर अंदर की तरफ गया, मतलब एयर एंटर्स इनटू द फेरिंग्स थ्रू इंटरनल लेयर्स और पोस्टीरियर लेयर्स। एयर एंटर किया नोज में थ्रू एक्सटर्नल लेयर्स और नोस्ट्रिल्स, तुम्हारा एयर एंटर करेगा फेरिंग्स को थ्रू इंटरनल लेयर्स, ओके। तो व्हेन वी आर swallowing the food, when you are drinking the water, this uvula closes them so that the food particles water will not enter into the nasal chamber, okay. So that is the function of uvula और velum palati। तो समझ में आया? तो पैलेट तुम्हारा है हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। तो यहाँ पे थोड़ा मैं लिख दिया भी हूँ यहाँ पे नोट्स के लिए। तो जो बच्चे तुम्हारा प्रिपेयर हो रहे हैं 11th, जो मतलब जो नीट 2000 तुम्हारा 21 के लिए, नोट भी तुम बनाओ, ठीक। जो मैं बता रहा हूँ यू मेक द नोट्स। पैलेट, इसका जो इंटीरियर पार्ट होता है दैट इज द हार्ड पैलेट, पोस्टीरियर पार्ट उसका होता है सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट, ओके। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसवर्स रीजेस है, उनको बोलते हैं पालाटाइन रुगे। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है पालाटाइन रुगे का, व्हेन यू आर च्यूइंग द फूड मटेरियल्स सो दे हेल्प टू होल्ड द पार्टिकल, मतलब फूड पार्टिकल स्लिप नहीं होता है जब हम फूड को च्यूइंग करते हैं ना, सो दे प्रिवेंट द स्लिपिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स। देखो ये तुम रफ है, थोड़ा रीजेस वगैरह है, तो दे प्रिवेंट द स्लिपिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स व्हेन वी आर च्यूइंग दैट, पालाटाइन रुगे। और जो पीछे वाला पार्ट तो तुम बोला ही मैं, सॉफ्ट पैलेट, इट इज द पोस्टीरियर पार्ट, ये स्मूथ होता है, ये हार्ड होता है। यहाँ पे एक स्मॉल फ्लैप होता है, फ्लैप दैट इज कॉल्ड यूवुला और वेलम पालाटी, जो कि तुमको मैंने डायग्राम में शो की, ओके। तो जो पैलेट तुम्हारा है बच्चा लोग, पैलेट तुम्हारा है रूफ होता है, ओके। अगर हम उसका फ्लोर की बात हम करेंगे, ठीक, अगर हम यहाँ पे फ्लोर का बात हम करें, फ्लोर, तो ओरल कैविटी के फ्लोर में तुम्हारा क्या है, नाउ वी हैव अ टंग, सॉरी ओरल कैविटी के फ्लोर में तुम्हारे पास क्या है, टंग है। एक तो थीम ले लेते हैं समझने के लिए, ठीक। अगर हम तो डार्क थीम ले लेंगे तो तुमको इजी होगा शायद। वो अपकमिंग स्लाइड और एक स्लाइड हम ले लें, ठीक। थोड़ा डार्क में तुमको समझाने के लिए इजी होगा। सपोज कलर इसने ले लिया टंग, अगर हम टंग का हम बात करेंगे तो एनसीईआरटी में तो लिखा गया है टंग इज ए फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। जो टंग तुम्हारा है क्या है, इट इज फ्रीली मूवेबल, इट इज ए फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। टंग इज ए फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, मतलब फ्रीली मूवमेंट तुम्हारा हो रहा है, तो ये मस्कुलर ऑर्गन है। तो मेरे को बताओ अभी, मैं चैट बॉक्स को इनेबल कर दे रहा हूं, मेरे को रिप्लाई तुम्हारा दो, टंग में कौन सा मसल होता है। टंग इज ए फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, इज ए फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। मसल है टंग में, यू आर एबल टू मूव द टंग, तो टंग में कौन सा मसल्स होता है, देखते हैं किसने रिप्लाई दिया। यस, अभिश्रांत ने बोला है कि इसमें स्केलेटल मसल होता है। यस, वेरी गुड। यू सी, अगर स्मूथ मसल होगा तो यू कैन नॉट मूव द टंग, ठीक। अगर सपोज जैसे कि तुमको लगता होगा क्या टंग बहुत स्मूथ है, लगता होगा कि टंग बहुत स्मूथ है तो उसमें स्मूथ मसल होगा, नहीं, ओके। टंग के बेस में एक बोन है दैट इज कॉल्ड हायोइड बोन। तुम्हारा टंग जहां से निकला है ना, देखो तुम्हारा टंग जहां से निकला है, तुम्हारा टंग जहां से निकला है, ठीक,
वहां पे एक हायोइड बोन है और उसी बोन से ही तुम्हारा टंग निकला है। ये तुम्हारा होता है हायोइड बोन। ठीक, तो ये तुम्हारा है टंग। ओके, तो टंग ऑल्सो अटैच टू द बोन्स, सो इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू फ्रीली मूव द टंग। हायोइड बोन को टंग बोन भी बोलते हैं। ओके, तो इसमें तुम्हारा जो है इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल, इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल। ओके, तो फिर टंग का मेन फंक्शन तुम्हारा क्या है? टंग का जो बेसिक फंक्शन तुम्हारा है, इट हेल्प्स टू व्हाट आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। जो भी तुम फूड खाते हो, टंग हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेस्ट। ये तुम्हारा स्पीच में भी तुम्हारा बात करता है। व्हेन यू आर मास्टिकेटिंग द फूड, ये तुम्हारा फूड को हेल्प करता है टू मिक्स विद द सलाइवा सो दैट फूड बोलस फॉर्म होता है। तो इसका वैरायटी ऑफ फंक्शन, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा टंग ओनली हेल्प्स इन द टेस्टिंग ऑफ फूड, it helps in food mastication, it helps in food swallowing। अगर तुम्हारा टंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, you cannot swallow the food। ठीक, तो इससे बहुत सारे फंक्शन है। ओके, बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे रिगार्डिंग द टेस्टिंग, मतलब हाउ दे हेल्प टू टेस्ट द फूड सब्सटेंसेस। ओके, इफ यू सी द सरफेस ऑफ द टंग, अगर हम टंग का सरफेस हम देखेंगे, अगर हम देखेंगे टंग का सरफेस देखेंगे, ठीक, अगर तुम टंग का सरफेस देखोगे ना, तो वहां पे तुम्हारा क्या होता है, बहुत सारे रीजेस हैं, मतलब आउटग्रोथ फ्रॉम द रीजेस, उनको हम बोलते हैं पापिलाए, हम बोलते हैं, दो कॉल्ड पापिलाए। ऑन द सरफेस ऑफ द टंग्स वी हैव द पापिलाए। बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पापिलाए। अगर हम टंग का सरफेस हम देखेंगे, तो तुमको थोड़ा समझा रहा हूं यहाँ पे। If you see the surface of the tongue, अगर टंग का हम सरफेस देखेंगे, तो टंग के सरफेस में प्रोजेक्शंस आर देयर, देयर आर प्रोजेक्शन ऑन द सरफेस ऑफ द टंग। सपोज ये तुम्हारा टंग हो गया, ऑन द सरफेस ऑफ द टंग वी हैव द प्रोजेक्शन, उनको पापिलाए बोलते हैं। ओके, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अपर और डोर्सल पार्ट ऑफ द टंग, उसका वेंट्रल पार्ट हम नहीं जा रहे हैं, बाद में हम डिस्कस करेंगे। नाउ हियर वी आर डिस्कसिंग द अपर सरफेस ऑफ द टंग। ओके, तो टंग का जो अपर सरफेस होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक, यहां पे एक तुम्हारा ऐसा मार्जिन तुम्हारा होता है, ठीक, एक मार्जिन तुम्हारा होता है, इन्वर्टेड वी शेप मार्जिन। इसको क्या बोलते हैं बताओ, एनीवन? एनीवन से टंग में एक मार्जिन होता है, इन्वर्टेड वी शेप मार्जिन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड सल्कस टर्मिनालिस। यस, उसको हम बोलते हैं सल्कस टर्मिनालिस, सल्कस टर्मिनालिस। ओके, इट डिवाइड द टंग इनटू 2 पार्ट्स। तो ये जो पीछे वाला पार्ट है, इट इज कॉल्ड फारिंजियल पार्ट ऑफ द टंग, इट इज कॉल्ड फारिंजियल पार्ट ऑफ टंग। ये वाला पार्ट उसका क्या है? इट इज द ओरल पार्ट ऑफ द टंग, इट इज द ओरल पार्ट ऑफ टंग, फारिंजियल इन द ओरल पार्ट ऑफ द टंग। उसके ये जो मतलब ये सल्कस टर्मिनस के टिप पॉइंट में एक पिट और डिप्रेशन होता है। हियर वी हैव ए पिट और डिप्रेशन, इट इज ए एम्ब्रियोलॉजिकल रेमनेंट। इसको हम बोलते हैं फोरामेन सिकम, इसको हम बोलते हैं फोरामेन सिकम। यस, फोरामेन सिकम, it is the remnant of thyroglossal duct, it is the remnant
अपर एंड ऑफ थायरोग्लोसल डक्ट। तुम जब मेडिकल पाओगे तो वहां पे पढ़ना, ठीक। फोरामेन सिकम इज embryological remnant of upper end of thyroglossal duct. Okay, that is called foramen cecum. Okay. तो ये जो pharyngeal पार्ट होता है, यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, यहाँ पे टॉन्सिल्स होते हैं, तो यहाँ पे तुम्हारा टॉन्सिल्स, उसको हम बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। तो here a group of tonsils that is called lingual tonsil. That is called lingual tonsil. Okay, tonsil. They help to produce lymphocytes. Tonsils, they are the part of the defense mechanism. मतलब टॉन के पीछे वाला पार्ट यहाँ पे, you have the lingual tonsils. अब आ जाओ तुम्हारा ओरल पार्ट आ जाओ। तो ओरल पार्ट ऑफ टंग जो होता है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। Here we have the 4 types of papillae. The largest papillae are called vellet papillae. The largest variety जो तुम्हारा होता है, जो largest variety होते हैं तुम्हारा, they are present on the posterior border. मतलब ठीक, these are the vellet papillae. इनका नंबर 8 to 12 होता है। These are the vellet papillae. इनको circumvellet भी बोलते हैं। These are the largest type of papillae, and each papillae contains up to 100 number of taste buds. इनका जो नंबर 8 to 12 होता है, vellet papillae, they are 8 to 12 in number. They are 8 to 12 in number. They are the largest type of papillae. They are circumvellet papillae. Yes, they are circumvellet papillae. Each contain up to 100 number of taste buds. Okay. उसके बाद और एक पापिला तुम्हारा यहाँ पे होता है, लीफ लाइक पापिला। ओके, यहाँ पे होता है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे यहाँ बताओ? We have another type of papilla here. इसको हम बोलते हैं foliate papilla. Yes. Foliate. Foliate papilla मतलब leaf-like papilla. But actually these are not developed in the adult stage. Okay, they are not developed in the human being foliate papilla. उनका जो taste bud होता है, they are destroyed in the childhood. Foliate papilla, yes, they are destroyed in the childhood. So they are not well developed in human being. Foliate papilla. मतलब on the posterior margin of the tongue, we have the leaf-like papilla. Okay. उसके बाद तुम्हारा आ जाओ. Then we have the another type of papilla. तुम्हारा कौन सा कलर ले लिया जाए? ये कलर ले लीजिए. ओके, मतलब अब तुम्हारा जो टंग का जो मार्जिन, दोनों बॉर्डर के साइड में मार्जिन में, here we have the small rounded papillae. बॉर्डर में तुम्हारा है, प्लस टिप में भी कुछ पापिला है. Yes, they are called fungiform papillae. They are called fungiform. F-U-N-G. They are called fungiform papillae. Okay, fungiform. These are the fungiform papillae. इनमें भी टेस्ट बर्ड होते हैं. Okay, they contain up to 4 to 5 टेस्ट बर्ड. Fungiform papillae. उनका जो साइड इंटरमीडिएट होता है, देखो लार्जेस्ट तुम्हारा हो गया फोलिएट, सॉरी लार्जेस्ट तुम्हारा हो गया वेलेट हो गया. दे आर द इंटरमीडिएट टाइप, बिकॉज सबसे जो छोटा होता है उसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म पापिलाe. हम डिस्कस करेंगे. द स्मॉलेस्ट वन आर द फिलीफॉर्म पापिलाe, जो कि तुम्हारा कोनिकल होते हैं और तुम्हारा लाइक दिस. दे आर द कोनिकल व्हाइट कलर. ओके, मतलब यहाँ पे सब होते हैं. ओके, इनको बोलते हैं फोलिएट सॉरी फिलीफॉर्म पापिलाe. These are called filiform
They are called, yes, they are called filiform पापिला। तो यहाँ पे जो फिलीफॉर्म पापिला है, दे आर द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ पापिला। फिलीफॉर्म पापिला आर द स्मॉलेस्ट टाइप, ओके, एंड मोस्ट न्यूमरस, सबसे ज्यादा इनका नंबर होता है। व्हाइटिश कोनिकल शेप प्रेजेंट ऑन द दिस एरिया ऑफ द टंग, फिलीफॉर्म पापिला। सबसे मेन यहाँ पे पॉइंट तुम्हारा है, दे डोंट हैव द टेस्ट बर्ड। यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स एब्सेंट। इसका जो टेस्ट बर्ड्स होता है absent, yes, taste buds absent, so they are the tactile और touch receptors। जो फिलीफॉर्म पापिला होते हैं, फिलीफॉर्म पापिला है, they are tactile, they are tactile or having touch receptors, understood? okay, तो समझ में आया? तो बेसिकली वी हैव द 4 टाइप्स ऑफ पापिला। सबसे जो लार्जेस्ट तुम्हारा आया क्या, वेलेट पापिला, लार्जेस्ट वन। सबसे स्मॉलेस्ट तुम्हारा आया फिलीफॉर्म पापिला। फोलिएट तो वेल डेवलप नहीं है। देन फंगीफॉर्म पापिला आर द इंटरमीडिएट टाइप ऑफ पापिला। ओके, तो यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट तुम्हारा क्या है, ओनली द वेलेट पापिला एंड द फंगीफॉर्म पापिला दे हैव द टेस्ट बर्ड्स। फिलीफॉर्म में तो नहीं होता है, और जो तुम्हारा जो फोलिएट होता है उसका डीजेनेरेट हो गया है चाइल्डहुड स्टेज में। ओके, सो ये तुम्हारा हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ पापिला ऑन द सरफेस ऑफ द टंग। समझ में आया? सो द पापिला दे कंटेन द टेस्ट बर्ड्स, उनमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फूड, अंडरस्टूड? ओके, अगर हम एक टेस्ट एरिया देखेंगे, सपोज इफ यू सी द टेस्ट एरिया, अगर हम देखेंगे टंग में टेस्ट एरिया, ओके, थैंक यू। तो आज हमारा क्या है, गुरु पूर्णिमा है ना? यस, आदित्य ने लिखा है गुरु पूर्णिमा आज। सो ये एक बहुत अच्छा दिन है, गुरु पूर्णिमा। तो यू गिव रेस्पेक्ट टू योर गुरुज। देखो बेटा, गुरु तो सबको ही तुम्हारा है, खाली हम लोग गुरु नहीं है तुम्हारा। तुम्हारे फर्स्ट गुरु इज योर पेरेंट्स। तुम्हारे जो मदर होते हैं वो तुम्हारा फर्स्ट गुरु है। ओके, सो दिस डे इज फॉरवर्ड to give respect, हाँ, to give respect to your gurus। तो तुम्हारे जो पेरेंट्स हो तुम्हारे पहले गुरु हैं, ठीक, योर मदर। ओके, अगर हम टेस्ट एरिया की बात करेंगे, मतलब टंग का कौन से पार्ट में कौन सा टेस्ट एरिया है, अगर तुम्हारा बात किया जाए टंग का, तो टंग का जो टिप एरिया होता है, टंग का जो टिप एरिया होता है, ठीक, ये होता है हमारा स्वीट टेस्ट के लिए। ये होता है हमारा स्वीट एरिया, मतलब इस पार्ट में दिस पार्ट डायग्नोज द स्वीट टेस्ट, स्वीट एरिया। ओके, उसके बाद अगर हम साइड का बात सब करेंगे, ये जो साइड एरिया तुम्हारा है, ठीक, ये तुम्हारा होता है सॉल्ट एरिया, सॉल्ट टेस्ट के लिए, ठीक। ये वाला तुम्हारा होता है सोर, सोर के लिए, ठीक। और ये जो पीछे वाला एरिया तुम्हारा होता है, ये वाला तुम्हारा एरिया है, ये तुम्हारा बीटर टेस्ट के लिए। दोनों इस साइड में भी तुम्हारा ये बीटर टेस्ट के लिए, याद रखना, बीटर। तो जो अपर वाला पार्ट होता है बीटर टेस्ट के लिए, ये वाला जो एरिया तुम्हारा बीटर टेस्ट के लिए है। टिप जो तुम्हारा होता है स्वीट टेस्ट के लिए होता है। जो साइड जो उसके होते हैं तुम्हारा सॉल्ट एंड सोर के लिए होते हैं, सॉल्ट एंड सोर के लिए। हाँ, ओके, तो मेरे को तुम बताओ, ये 1 आवर है बेटा, क्लास का टाइम तो 1 आवर है, क्योंकि अनअकैडमी का तो क्लास जो होता है 1 आवर का होता है, ठीक। तो अब मेरे को तुम यहाँ पे बताओ, तुम्हारा ब्रेन के कौन से पार्ट में सिग्नल जाता है टेस्ट के लिए, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। देखो, टंग तो तुम्हारा एक सेंसरी ऑर्गन तुम्हारा, ये रिसीव ओनली करेगा। यहाँ पे जो टेस्ट बर्ड्स हैं, दे आर ओनली द सेंसरी रिसेप्टर, दे रिसीव द टेस्ट, बट तुम्हारा सिग्नल जाएगा ब्रेन में। अल्टीमेटली यू हैव टू योर ब्रेन, यस, वेरी गुड। तो हमारा जो होता है ब्रेन में, जो तुम्हारा होता है पैराइटल लूप, याद रखना, ये वाला तुम्हारा
पैराइटल लोब ऑफ ब्रेन, ये थोड़ा याद रख लेना। इसमें हमारा ब्रेन मतलब सेरेब्रम का, इसमें तुम्हारा क्या होता है, टेस्ट सेंटर यहाँ पे, थोड़ा याद रखना। थैलामस नहीं, नो थैलामस नहीं, तुम्हारा पैराइटल लोब ऑफ द ब्रेन मतलब सेरेब्रम का ही तुम्हारा पार्ट है। तो पैराइटल पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर वो तुम्हारा टेस्ट एरिया का तुम्हारा है, ठीक। टंग में कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं यहाँ पे, देयर आर सम ग्लैंड्स आल्सो, ठीक। अगर हम टंग का सरफेस का बात करेंगे तो कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं, जैसे कि तुम्हारा एक होता है वेबर्स ग्लैंड, ठीक, एक होता है वेबर्स ग्लैंड, एक होता है तुम्हारा वेबर्स ग्लैंड होता है, ठीक। एक होता है हमारा एबनर्स ग्लैंड, देयर आर सम ग्लैंड, उनको हम नॉन ग्लैंड भी बोलते हैं। तो बहुत सारे ग्लैंड्स भी होते हैं तो टंग के सरफेस से। तुम अगर कुछ प्रीवियस तरह के क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं रिगार्डिंग ग्लैंड्स ऑन द सरफेस ऑफ द टंग, ओके। तो देखो थोड़ा मैं समझा दे रहा हूं, ओके। सो जो तुम्हारा होता है ये तुम्हारा टंग का सरफेस हो गया, ओके। तो इसका जो बॉर्डर में भी कुछ ग्लैंड होते हैं, इसका जो बॉर्डर वगैरह में कुछ तुम्हारा सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, टंग का जो बॉर्डर तुम्हारा होता है, ठीक, इस बॉर्डर में विल फाइंड सम सेलिवरी ग्लैंड्स, उसको हम बोलते हैं वेबर्स ग्लैंड्स, ओके। दे आर काइंड ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स, उसको हम बोलते हैं माइनर सेलिवरी ग्लैंड। देखो मेजर जो तुम्हारा हो गया तो तुम्हारा क्या, पैरोटिड, सबलिंगुअल, ठीक, वो तुम्हारा हो गया मेजर हो गया, ठीक। सबलिंगुअल, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी वो तुम्हारा मेजर हो गया। उसके बाद भी तुम्हारे पास यू हैव मेनी सेलिवरी ग्लैंड्स, ठीक। गुड आफ्टरनून, ओके। उसको वेबर्स ग्लैंड हम बोलते हैं। तो लाइक दैट वी हैव आल्सो सम ग्लैंड्स, ठीक। तो टंग के सरफेस में कुछ और भी तुम्हारा ग्लैंड्स है, टंग के सरफेस में और भी तुम्हारा कुछ ग्लैंड्स है। एक तुम्हारा है क्या, एबनर्स ग्लैंड भी होता है तुम्हारा, टंग के सरफेस में एबनर्स ग्लैंड भी होता है। इससे तुम्हारा क्या निकलता है, एक एंजाइम निकलता है। कैन यू से व्हाट एंजाइम इट प्रोड्यूसेस? इसमें एबनर्स ग्लैंड भी होते हैं, इससे क्या निकलता है, इट प्रोड्यूसेस ए एंजाइम, इसको हम बोलते हैं लिंगुअल लाइपेज, ठीक। ये फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम भी निकलता है एबनर्स ग्लैंड से, ओके। इसके अलावा हमारे पास देयर आर सम अदर सेलिवरी ग्लैंड्स भी तुम्हारा है, ठीक, जो कि टंग के सरफेस वगैरह में तुम्हारा होते हैं। मतलब टंग के सरफेस में भी बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, समझ में आए कि नहीं। सपोज ये तुम्हारा और भी तुम्हारा ग्लैंड्स हो गया नॉन ग्लैंड्स, नॉन ग्लैंड्स, they are also like your salivary glands, okay। तो Weber's glands, Ebner's glands, non-glands, these are the so important glands, they are found on the surface of the tongue, okay। तुमको तो मैंने बोला ही तुम्हारा है कि तुम्हारा जो होता है हायोइड बोन होता है, ठीक, टंग के बेस में है, जहां से टंग निकला है हायोइड बोन, ठीक। तो हायोइड बोन को हम टंग बोन भी बोलते हैं, टंग बोन बोलते हैं, ओके। एक टर्म तुम याद रखना, तो ये हो गया तुम्हारा। तो इट इज ऑल अबाउट योर टंग के बारे में तुम्हारा हो गया, ठीक। तो देख लो यहाँ पे थोड़ा हम डिस्कस हमने किया है, ओके। थोड़ा सा तुम बता दे रहा हूं, तुमको हेल्प तुमको करेगा, ओके। Just I'm telling about that what actually taste buds are.
तुमको ये रिसेप्टर में भी तुमको हेल्प करेगा। तो थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूं अबाउट टेस्ट बर्ड के बारे में। टेस्ट बर्ड्स, क्योंकि टेस्ट बर्ड्स तुम्हारे सिलेबस में भी है, लेकिन वो तुम्हारा जो चैप्टर तुम्हारा है रिसेप्ट सेंसरी ऑर्गन, जो चैप्टर तुम्हारा वहां पे तुम्हारा है अबाउट टेस्ट बर्ड्स। ओके, सो टेस्ट बर्ड्स आर द सेंसरी रिसेप्टर्स ऑन द सरफेस ऑफ द टंग। ओके, जो टेस्ट बर्ड तुम्हारा होता है दे आर बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम टेस्ट बर्ड हम जो बोलते हैं ना, ये तुम्हारा एक बर्ड जैसा स्ट्रक्चर है तुम्हारा, लाइक द बर्ड ऑफ ए फ्लावर, ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर टेस्ट बर्ड्स। ठीक, तो टेस्ट बर्ड्स में क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स हैं यहाँ पे द टेस्ट बर्ड्स, तो हियर मेनी सेल्स आर देयर। So taste buds are special type of cells. Sorry, they have the special types of cell यहाँ पे होता है, हम डिस्कशन करेंगे। तो टेस्ट बड में बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक, ये उसका जो प्रोजेक्शन तुम्हारा होता है, दे आर लाइक सेंसरी हेयर। तो ये जो सारे तुम्हारे हैं दे आर द स्पेशल टाइप ऑफ सेंसरी सेल्स। ये जो तुम्हारा है स्पेशल टाइप ऑफ सेंसरी सेल तुम्हारा है। ठीक, इनको हम बोलते हैं दे आर द टेस्ट रिसेप्टर्स, सेंसरी हेयर सेल्स और सेंसरी सेल्स, सेंसरी सेल। इनको बोलते हैं गस्टेटो रिसेप्टर, हम बोलते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड गस्टेटो रिसेप्टर, गस्टेटो रिसेप्टर्स। ओके, तो उनका जो एक एंड तुम्हारा है ये माइक्रोविली ऐसा प्रोजेक्शन यहाँ पे तुम्हारा, ये उनका सेंसरी पार्ट है, और दूसरे पार्ट से तुम्हारा क्या यहाँ से निकलता है नर्व फाइबर तुम्हारा निकल रहता है, सेंसरी नर्व फाइबर, जो कि तुम्हारा ब्रेन तक तुम्हारा जाता है। ये तुम्हारा ब्रेन को जाएगा। ठीक, ओके, ये तुम्हारा जाएगा ब्रेन में, कहां पे तुम्हारा जाएगा ना, ये तुम्हारा जाएगा पैराइटल लोब, पैराइटल लोब में जाता है। उस पैराइटल लोब में तुम्हारा क्या है, टेस्ट एरिया है। ओके, तो ये हो गया सेंसरी सेल्स और गस्टेटो रिसेप्टर्स। ओके, तो अब यहाँ पे तुम्हारा क्या है, बीच बीच में तुम्हारा सम अदर टाइप ऑफ सेल्स आर आल्सो देयर, उनको हम सपोर्टिंग सेल्स भी बोलते हैं। यू सी वेरेवर जहां भी तुम्हारा क्या होते हैं सेंसरी सेल्स होते हैं तुम्हारा ना, जैसे कि ऑर्गेनोपोटी भी तुम्हारा हो गया, तो वहां पे, तो यहाँ पे सम सपोर्टिंग सेल्स भी यहाँ पे होते हैं, कुछ देयर आर सम सपोर्टिंग सेल्स। सपोर्टिंग सेल्स, सो दिस ओके, तो ये तुम्हारा टेस्ट बड हो गया। ठीक, तो ये तुम्हारा सपोज टंग का सरफेस है, ये तुम्हारा टंग का ये सरफेस तुम्हारा सपोज, ये टंग का तुम्हारा क्या है सरफेस है, दिस इज द सरफेस ऑफ द टंग। ओके, तो टंग के सरफेस में तुम्हारा ये होते हैं टेस्ट बड। ये डिप्रेशन जैसा तुम्हारा है, इसको पिट बोलते हैं, पिट जैसा डिप्रेशन तुम्हारा है। ठीक, तो जो भी तुम्हारा फूड मटेरियल यहाँ पे आके डिसॉल्व होता है, व्हाटएवर फूड मटेरियल्स, जो तुम्हारा फूड में जो केमिकल्स होते हैं वो यहाँ पे सब आके डिसॉल्व होते हैं। ठीक, एंड व्हेन द डिसॉल्व केमिकल्स इन द फूड कम्स इन कांटेक्ट विद दिस प्रोजेक्शंस, सेंसरी हेयर्स लाइक प्रोजेक्शंस, तो दे सेंड सिग्नल, वो अब तो सिग्नल भेजेंगे तुम्हारे कहाँ पे, ब्रेन का पैराइटल लोब में, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। ओके, ओके, तुम एक टर्म तुम यहाँ पे याद रखना, तुम एक टर्म तुमको बता रहा हूं मैं यहाँ पे, एक दो टर्म तुमको यहाँ पे याद रखना। एक तुम्हारा होता है हेलिटोसिस, कुछ टर्म्स थोड़ा याद रखना।
हेलिटोसिस, इसको हम बेड ब्रीथ बोलते हैं, बेड ब्रीथ। मतलब तुम्हारा माउथ से तुम्हारा फाउल स्मेलिंग निकलेगा, ठीक, इट इज कॉल्ड बेड ब्रीथ। मतलब फाउल स्मेल कमिंग फ्रॉम द माउथ। जब हमारा पढ़ेंगे टीथ गम में इंफेक्शन हो जाता है तो कुछ बैड ऑर्डर निकलता है, बैड ऑर्डर, बैड ऑर्डर फ्रॉम द माउथ, बैड ब्रीथ, तो तुम उसको बोल सकते हो बैड ऑर्डर। ओके, और एक भी तुम्हारा टर्म होता है पायरिया। ओके, बेसल सेल्स भी तुम्हारा होते हैं। देखो अगर बेसल सेल का तुम्हारा बात करो, बेसल सेल एक तो तुम्हारा ओल्फैक्टरी एपिथेलियम में तुम्हारा होता है। Basal cells are basically found in your olfactory epithelium. Okay. Basal cell का function क्या होता है? When the cells are degenerated, means when the either supporting cells or the sensory cells are degenerated, the basal cell they will form the new cells. उसी के एरिया में होता है, लेकिन basal cells are basically found in case of your what? Olfactory epithelium और Schneiderian membrane. वहाँ पे there are 3 types of cells वहाँ पे होते हैं। एक तुम्हारा होता है सपोर्टिंग सेल्स, बेसल सेल्स, और तुम्हारा जो रिसेप्टर ओल्फैक्टो रिसेप्टर। ओके, ये होता है पायरिया। पायरिया मतलब तुम्हारा क्या होता है? पस डिस्चार्ज। ओके, पस डिस्चार्ज फ्रॉम योर माउथ ड्यू टू इन्फेक्टेड गम, पस डिस्चार्ज फ्रॉम infected gum and teeth। ओके, तो बच्चा लोग आज का क्लास में यही था तुम्हारा, मेरा टर्म तक तुमको मैंने डिस्कस करना